Delhi is expected to experience partly cloudy skies on the 30th of May, predicted the regional weather officer, although heat wave conditions in certain areas will be persistent. The IMD has sounded an orange alert for today and forecasted that temperatures will decrease 2 degrees to 3 degrees Celsius. The weather agency predicted a maximum temperature of around 45 degrees Celsius. According to the Met Department, cloudy weather is expected to persist until the 1st of June, after which light rain or drizzle is not anticipated until the 4th of June. I'm being joined by my colleagues Akshay Jaiswal from Jaipur and Brian Thomas also joining us from Delhi. Let me begin with Brian. Brian, if you can take our viewers through the details of what is it that has been now forecasted for Delhi particularly. Devika, talking about Delhi, today is an orange alert given by the IMD. And even talking about the weather conditions, there is no rather respite in terms of the, weather conditions in the national capital. The temperature is soaring high each day as you go. We show you the visuals also. We are outside the very India Gate. There is the very Rashtrapati Bhavan. And you can see the temperature is all-time high even now. The temperature is above 38 degrees in the very early morning, also at 9 a.m. and it is likely to rise up to 44, 45 also. And in the past few days also 45 have been a stagnant temperature in the national capital. The sun is, on top of us. It's scorching heat, and as a result of that, also people are facing a lot of problem. Even yesterday, Mungeshpur recorded all-time high of 52.3. But even though they are saying that there has been a mishap in the recording of the temperature, but again, many parts also to one day prior also there was, in many parts of the record 49.9 degree also, and even to the fact also the humid conditions also prevailing to the fact that, and also another major problem that Delhiites or most part of the Delhiites are facing is the water crisis also, which is happening. If we show the visuals also, that is the very India Gate, and even there have been many red alert for several parts of the northwest India has also been reported, which is very alarming. And as a result of that also Delhi is even struggling to the fact, struggling with water crisis also, which is happening in the national capital, where even the water wars are happening. So talking about the temperature, if we talk about now, there is no rather respite, even though yes, IMD has said that there is a possibility for a cloudy weather on June 1st. But again, if you talk about now or in a few days, it is still a very alarming situation because it is causing a lot of heat-related sickness, be it heat stroke, lethargy is also, pulping. And if we show you the visuals also, you can actually see to the fact that you do not see a lot of people also because it's extreme heat conditions, and it becomes very unbearable also because it is soaring past the, normal degrees, which is, it's above the normal 2.2 degrees, 3 degrees. You see people are struggling, even animals to the fact are also, struggling in this very heat right. Conditions, Devika. Absolutely, Brian. Thank you so much for joining us. We also have our colleague Mahindra Mahi, who's joining us from Noida. Mahindra, over to you if you can take our viewers through the weather details and what really is it that the administration is saying. देखिए, जिस तरीके से दिल्ली का हाल है वही हाल नोएडा का। सुबह के 9 बज गए हैं और टेम्परेचर 35 के पास पहुंच गया। यानी कि सोचिए सुबह का ये हाल है तो दोपहर में क्या होगा। दोपहर में जो टेम्परेचर है वो 47 के पार पहुंच जाता है। कल जिस तरीके से 10-15 मिनट की बारिश हुई, तेज हवा चली, नोएडा एनसीआर के लोगों को थोड़ी बहुत राहत मिली। यानी कि उनको लगा कि अब कहीं ना कहीं गर्मी से राहत मिलेगी। मगर दूसरी तरफ आईएमडी का साफ तौर पे कहना है कि देखिए 15 जून तक कोई राहत नहीं मिलने वाली। इसी तरह के जो टेम्परेचर है, जो गर्म हवा है, वो चलती रहेगी। कल जिस तरीके से दिल्ली में 52 डिग्री दर्ज किया गया, जिसने तमाम सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, तो कहीं ना कहीं हम लोगों के मन में काफी डर सता रहा है कि अगर हमें अपना कामकाज करना होगा, घर में जो छोटे बच्चे हैं उनका ख्याल कैसे रखा जाए। तो क्योंकि नोएडा का 47 टेम्परेचर है, नोएडा के कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां टेम्परेचर 49 तक पहुंच रहा है, तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में डर है। दूसरी तरफ स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। जो छोटे बच्चे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर गर्मी से कोई परेशान होता है, बीमार पड़ते हैं,
तो छोटे बच्चे होते हैं। दूसरी तरफ जो नोएडा प्राधिकरण है, उन्होंने भी एक अच्छी पहल शुरू की है। नोएडा प्राधिकरण ने साफ तौर पे कहा कि जो उनके तमाम जो वर्कर है, जो फील्ड में काम करते हैं, वो सुबह 11 बजे तक काम करेंगे। उसके बाद 11 से लेकर 3 बजे तक वो काम नहीं करेंगे, क्योंकि उस वक्त सबसे ज्यादा जो टेम्परेचर होता है उसका असर देखने को मिलता है। और दूसरी तरफ नोएडा प्राधिकरण का यह भी कहना है कि तमाम जगह जो पब्लिक सेक्टर है, यानी कि जहां ज्यादा क्राउड इकट्ठा होता है, वहां प्याऊ की व्यवस्था कर रहे हैं। और कुछ जगह ऐसे भी है जहां प्याऊ बनाए गए। और जैसे ठंड में रेन बसेरा बनाया जाता है, वैसे ही नोएडा के सेक्टर 21 स्टेडियम में शेल्टर होम बनाया गया है, जहां जो रिक्शा चालक है, जो आंध्र प्रदेश से लोग आए हैं, जिनके पास कोई रुकने की व्यवस्था नहीं है, वहां वो टीन शेड के नीचे रह सकते हैं। वहां कूलर की व्यवस्था है। यानी कि अब जो नोएडा प्राधिकरण है, गर्मी से बचाने के लिए लोगों को कहीं ना कहीं उपाय कर रहा है। दूसरी तरफ मौसम विभाग ने भी साफ तौर पर कहा कि आने वाले समय में आपको कोई राहत नहीं मिलेगी। डॉक्टरों का क्या कहना है, ये भी बहुत जरूरी है। डॉक्टरों का साफ तौर पे कहना है कि देखिए, अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो फुल बाजू के कपड़े पहनिए, खाली पेट मत निकलिए। कोशिश करिए कि अपने जो सारे काम है, अगर जरूरी काम है तो सुबह 10 बजे से पहले निपटा लीजिए, क्योंकि 10 से लेकर 4 से 5 बजे के बीच जो टेम्परेचर होता है, चाहे नोएडा की बात करें, गाजियाबाद की बात करें, दिल्ली की बात करें, वो 50 तक पहुंच जाता है, जो कि बहुत ज्यादा आपके लिए घातक हो सकता है। कई ऐसे मरीज है जो निजी अस्पताल में भर्ती है, सरकारी अस्पताल में भर्ती है, उनको ORS का घोल दिया जा रहा है। किसी को डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम है, किसी को लू लगने की प्रॉब्लम है। ऐसे में जो आम जनता है बहुत ज्यादा त्रस्त हो चुकी है इस भीषण गर्मी में। दूसरी तरफ देखिए, क्योंकि भीषण गर्मी है, तो बिजली कटौती भी बहुत की जा रही है। पूरे नोएडा में तकरीबन 3 से 4 घंटे बिजली कटौती की जाती है, जिसके कारण जो लोग हैं बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। जबकि नोएडा नो कट पावर जोन में शामिल है, यानी कि यहाँ 24 घंटे बिजली देने का जो अधिकारी है वादा करते हैं, मगर दोपहर से लेकर शाम और रात तक तकरीबन 3 से 4 घंटे बिजली काटी जाती है, जिससे आम जनता बहुत ज्यादा परेशान नजर आती है। जी, ओके, ऑल राइट महेंद्र, बने रहिए हमारे साथ। अक्षय जायसवाल ऑल्सो जॉइनिंग अस फ्रॉम जयपुर। अक्षय, व्हाट इज द सिचुएशन इन जयपुर? जी देखिए, राजस्थान के हालात गर्मी से किसी से छुपे हुए नहीं है, और राजस्थान के अधिकांश जो जिलों में जो तापमान है वो दोपहर 12 बजे के बाद जो है 48 डिग्री के पार हो जाता है। यानी कि सीधे तौर पर 50 और 48 का जो तापमान है वो लगभग इसी के अंदाजे से इतना ही रहता है, सीधे तौर पर देखने को मिलता है। वहीं अगर राजस्थान के अधिकतर शहरों की और जिलों की बात करें, फलोदी, चूरू, बाड़मेर, जैसलमेर, अधिकतर इन शहरों में ये ग्रामीण क्षेत्र है, जंजार क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में जो पारा है वो 50 डिग्री देखने को मिल रहा है। वहीं अगर राजधानी जयपुर की बात करें तो राजधानी जयपुर में भी जो तापमान है वो 47 डिग्री के आसपास दोपहर के 3 बजे देखने को मिलता है। यानी कि पिछले 10 साल का जो रिकॉर्ड है वो अब की बार टूटता हुआ नजर आ रहा है, और आम जनता सीधे तौर पर इस गर्मी से बेहाल होती हुई नजर आ रही है। आम जनता को डॉक्टरों की सलाह है कि जब भी आम जनता राजस्थान की बाहर निकले वो अपने साथ में पेय पदार्थ यानी कि पानी, छाछ और अन्य जो पेय पदार्थ है उसका सेवन करे, ताकि वो लू की थपेड़ों में ना आ सके। वहीं राजस्थान में अभी जो गर्मी से मौतों का जो आंकड़ा है, यानी कि जिन लोगों की मृत्यु हुई है वो 56 के आसपास यहाँ पर सामने देखने को मिल रहा है। यानी कि 56 जो मौतें हैं गर्मी से वो यहाँ पर हो चुकी है। यानी कि राजस्थान के जो हालात है वो दिन पे दिन बिगड़ते हुए साफ तौर पर देखने को मिल रहे हैं। अगर मौसम विभाग की माने तो मौसम विभाग ने एक अलर्ट जारी करा है पिछले 2 दिन पहले कि आगामी दिनों में, यानी कि आगामी दिनों में नौतपा जब खत्म होगा तो एक पश्चिमी विक्षोभ का असर जो है राजस्थान में देखने को मिलेगा। इसमें बारिश नहीं आएगी, लेकिन धूल, आंधी ये चलने की संभावना सीधे तौर पर देखने को मिल रही है। वहीं 5 तारीख बाद यानी कि 5 जून के बाद में फिर से एक बार गर्मी का जो असर है राजस्थान के अधिकांश जिलों में और शहरों में देखने को मिलेगा। यानी कि आम जनता को थोड़ी बहुत भी जो राहत है वो अभी 2-3 दिन में देखने को मिलेगी, और उसके बाद जो फिर से गर्मी के जो आलम है फिर से साफ तौर पर देखने को मिलेंगे। जुलाई में मान सकते हैं, मौसम विभाग ने कहा है कि जुलाई में जो बारिश का आने की संभावना है, जिसके बाद जो आम जनता को थोड़ी बहुत जो राहत है वो देखने को मिलेगी। यानी कि आम जनता को अभी थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा मानसून का, उसके बाद जो राहत है वो यहाँ पर देखने को मिलेगी। जी, Right, absolutely, Akshay. Stay on with us. Ravi also joining us from Lucknow. Ravi, if you can take our viewers through the details for Lucknow. Lucknow में क्या हाल है अभी?
जी बिल्कुल, लखनऊ के हाल बेहद ही खराब है और इस वक्त गर्मी की बात करें तो बेहद ही ज्यादा उमस हो रही है और सुबह से ही जैसे ही सूर्योदय होता है उसके साथ ही जो गर्मी है वो अपना विकराल रूप ले लेती है और पूरा दिन में तापमान में बढ़ोतरी रहती है, जिसकी वजह से लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ता है। और इस वक्त की बात करें सुबह के 9 बज चुके हैं और इस वक्त अगर हम बात करें तो हमारे पीछे सड़क देख सकते हैं, सड़क पर करीब करीब सन्नाटा नजर आ रहा है। सन्नाटे की वजह ये क्योंकि इतनी ज्यादा गर्मी हो रही है, इतनी ज्यादा धूप हो रही है और लगातार सुबह से ही जो आग बरसती है आसमान से वो सीधे सीधे लोगों को परेशान करती है, जिसकी वजह से लोगों का आवागमन है वो ना के बराबर ही हो जाता है। और इस वक्त की बात करें तो इस वक्त करीब 34 डिग्री के आसपास तापमान हो चुका है और जिस तरीके से जैसे जैसे समय गुजरता है वैसे वैसे तापमान में बढ़ोतरी होती है, वैसे वैसे गर्मी अपना विकराल रूप लेती है। हालांकि मौसम जानकारों ने साफ किया है कि 30 तारीख यानी आज से 2 जून के करीब उत्तर प्रदेश कुछ जिलों में बारिश होने की संभावना जरूर जताई गई, जिससे मौसम में मामूली कमी जरूर होगी, जिससे कि मौसम में कुछ थोड़ी सी तापमान में गिरावट की उम्मीद की जा रही है। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से गर्मी और उमस हो रही है उसकी वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश के तमाम सारे ऐसे जिले हैं जहां पर जो तापमान है करीब 40 डिग्री के आसपास जा चुका है और अगर हम बात करें तो इस भीषण गर्मी की वजह से जो लोग अगर बीमार भी हो जाते हैं तो उनके लिए अस्पतालों में ORS काउंटर लगाए गए ताकि अगर वो इस गर्मी से अगर बीमार भी होते हैं तो उनको समुचित इलाज की व्यवस्था की जाए। हालांकि जिस तरीके से लगातार गर्मी हुई है, लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में जो तापमान करीब 44 डिग्री के आसपास जा चुका है और अगर हम बात करें तो झांसी, आगरा, कानपुर, वाराणसी जैसे कई सारे ऐसे जिले हैं जहां पर तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिली है। हालांकि 40 डिग्री के आसपास कई सारे ऐसे जिले हैं जहां पर तापमान देखा जा रहा है और हालांकि अब ये जरूर उम्मीद की जा रही है कि थोड़े तापमान में कमी जरूर हो सकती है जिस तरीके से बारिश की संभावना जताई गई है। लेकिन जिस तरीके से लगातार भीषण गर्मी और उमस हो रही है उससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रात में उमस होती है, हालांकि बादलों की आवाजाही की वजह से भी उमस का सामना करना पड़ रहा है और सबसे बड़ी समस्या है जो बिजली की लगातार कटौती हो रही है उसकी वजह से आम जीवन पूरी तरीके से प्रभावित है। कई बार बिजली का जो आना जाना होता है जिसकी वजह से लोग हैं वो बेहद ही इस गर्मी की वजह से परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि जानकारों ने साफ किया है, मौसम जानकारों ने कि गर्मी की वजह से लोग अगर कोशिश करें ना ही निकले और निकलना भी होता है तो अपने साथ अपने आप को ढक के रखे कपड़ों से और उसके साथ पानी की बोतल या पानी का सेवन करते हुए छांव का सहारा लें, ढक के रखें अपने आप को कपड़ों से ताकि इस भीषण गर्मी से बच सके। और जिस तरीके से लगातार भीषण गर्मी हो रही है उसकी वजह से पूरा आम जो जनजीवन है वो पूरी तरीके से प्रभावित हो चुका है। जी Okay, all right. I thank all of our reporters for joining us on the broadcast to take us through the details of the heat wave. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.